Let's discuss about work done to reduce distance between two charges. जब दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को कम करना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इट मीन्स आपको पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. So work done equals to final potential energy minus initial potential energy. What will be the final potential energy? 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r2, and initial potential energy 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r1. Clear? So you will subtract, then you will get. So this is a topic to work done to reduce distances between two charges. See the numerical. Two positive point charges of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 cm apart. Calculate the work done in reducing the distance of 5 cm. दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं 0.2 माइक्रोकुलाम एंड 0.01 माइक्रोकुलाम जो 10 सेंटीमीटर अपार्ट है. अब आपको उनकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर तक करनी है, तो उसके लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर. लेट्स सी द सॉल्यूशन. Here charge q1 equals to 0.2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Another charge q2 equals to 0.01 into 10 to the power minus 6 coulomb. Micro means 10 to the power minus 6. Clear? Final distance is 0.05 meter. 5 centimeter is given, so you will convert it into meter. 0.05 meter. Initial distance was 10 centimeter, so r1 will be 0.10 meter. Now you have to calculate the work done. Work done equals to change in potential energy. How will you calculate work done? Work done will be final potential energy minus initial potential energy. Clear? What is final potential energy? K q1 q2 upon r2. And what is initial potential energy? 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r1. So 1 upon 4 pi epsilon naught and q1 q2 will be common. In bracket 1 upon r2 minus 1 upon r1. Clear? 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. Clear? 0.2 into 10 to the power minus 6 q1, 0.01 into 10 to the power minus 6 q2 into, you will solve it, you will take common 1 upon everything, you will be take common, then it will be left 1 upon 0.05 minus 1 upon 0.10. So you will get answer 1.8 into 10 to the power minus 4 joule. The unit of work done is joule. What is the work required to separate charges infinitely? दो चार्जेस को अगर इन्फिनिटली सेपरेट करना है तो वर्क डन कितना होगा? द वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी. ओके, देन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. सो दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट चार्जेस इन्फिनिटली. वर्क दो चार्जेस को सेपरेट करने के लिए, इन्फिनिटली सेपरेट करने के लिए वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy in an external field is given by q1v r1 plus q2v plus 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. जब दो चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में लाया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन बाय q1v plus q2v plus 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. You can see VR1 is written, means potential at R1 distance. VR2 is written, so potential at R2 distance. So how will you calculate potential energy in an external field? Q1V R1 plus Q2V R2 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. Determine electrostatic potential energy of a system consisting of two charges. Determine electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb, and first with there are no external field, placed at minus 9 centimeter 0,0 and 9 centimeter 0,0 respectively. तो आपको इसमें डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू आर टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी. दो चार्जेस गिवन है, 7 माइक्रोकुलम एंड अनदर इज minus 2 माइक्रोकुलम. पोजीशन है -2, 0,0. एक्स एक्सिस पे है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है. सेकंड चार्ज जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है 9 सेंटीमीटर. तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ऑफ कोर्स 18 सेंटीमीटर, क्योंकि एक एक्स के -9 है और एक एक्स के +9 है. सो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोनों की?
18 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, देन 0.18 मीटर. Second question, how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? आपको फाइंड करना how much work is required to separate, कितना वर्क रिक्वायर्ड रहेगा सेपरेट करने के लिए दो चार्जेस को इन्फिनिटली. क्लियर. थर्ड पार्ट, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड. अब उन टू सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में ले जाया जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय A/r². ए की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स 2. तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एक्सटर्नल फील्ड में ले जाने के लिए उनकी एनर्जी क्या होगी. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. चार्ज Q1 7 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶. अनदर चार्ज -2 माइक्रोकूलम, -2 × 10⁻⁶. How will you calculate distance? Distance between the charges 9 minus -9, it will be 18 centimeter. It will become 18 × 10⁻² meter. Centimeter means 10⁻². Now you are to calculate first electrostatic potential energy. So potential energy formula is 1/4πε0 Q1 Q2 upon R. 1/4πε0 value is 9 × 10⁻⁹. Q1 7 × 10⁻⁶, Q2 -2 × 10⁻⁶, R 18 × 10⁻². 10⁻⁶, 10⁻⁶, it will be 10⁻12. क्लियर. 10⁻9 ऊपर है, 10⁻2 नीचे, ऊपर जाएगा तो 10⁻11 हो जाएगा. तो -12 में से 11 जाएगा तो 10⁻−1 बचेगा. क्लियर. अब 9 × 2 = 18, 18 से 18 कैंसिल, 7 × 10⁻−1 कितना होगा 0.7 जूल. आंसर विल बी इन -0.7 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो इनफाइनाइटली सेपरेट दो चार्जेस को सेपरेट करने के लिए वर्क डन कितना होता है. वर्क डन इक्वल्स टू -u. तो ये जो आंसर -0.7 जूल आया है तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चार्जेस को सेपरेट करने के लिए, इनफाइनाइटली सेपरेट करने के लिए वर्क डन आ जाएगा. एज यू कैन सी सेकेंड पार्ट, द वर्क डन टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर. या तो आप पोटेंशियल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.7 जूल आ जाएगा, या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान करके उसमें से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो, U2 - U1. सो यू विल गेट -u. सिमिलरली, और u की वैल्यू कितनी थी -0.7, सो यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर 0.7 जूल. क्लियर. तो आप पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन टू सेपरेट द टू चार्जेस यू विल गेट इनफाइनाइटली. क्लियर. थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, दो चार्जेस सेम चार्जेस को आपको एक्सटर्नल फील्ड में लेके जाना. तो एक्सटर्नल फील्ड में ले जाने के लिए कितना वर्क होता है, Q1V + Q2V + 1/4πε0 Q1 Q2 upon R. तो 1/4πε0 Q1 Q2 upon R तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं -0.7. सो यू कैन सी R1 की पोजीशन क्या थी 9 सेंटीमीटर, R2 की पोजीशन क्या है 9 सेंटीमीटर. सो इट विल बी 0.09 मीटर. क्लियर. जब दो सिस्टम चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1V ब्रैकेट में R1 + Q2V ब्रैकेट में R2 + 1/4πε0 Q1 Q2 upon R. ये R1 वेक्टर R2 वेक्टर सिर्फ पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये फार्मूले में नहीं है. क्लियर. आपने देखा हो तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो A/r² गिवन है. क्लियर. E = V/r होता है, तो V = क्या हो जाएगा E × R. V = कितना हो गया E × R. अब E की जगह A/r² रखेंगे तो V = कितना हो जाएगा A/r. क्लियर. जैसे आप देखें यहाँ पे जो UR = Q1V है, V की जगह हमने क्या रख दिया ER1, क्योंकि V का फार्मूला क्या होता है E × R. सिमिलरली प्लस Q2V है तो V की जगह ER2 रख दिया. अब E की जगह जो है हम क्या रखेंगे A/r1². सिमिलरली यहाँ पे E की जगह क्या रखेंगे A/r2². R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल. क्लियर. तो आपके पास क्या बचा AQ1/R1 + AQ2/R2 + 1/4πε0 Q1 Q2/R. A की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁵. Q1 is 7 माइक्रोकूलम, R1 is 0.09. सिमिलरली A की वैल्यू 9 × 10⁵, Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁶/0.09 और 1/4πε0 Q1 Q2 upon R की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 0.7.
10⁻⁻6 इंटू 10⁻5, 10⁻−1 हो जाएगा। क्लियर। और आप कॉमन ले लेंगे 9 इंटू 10⁻−1, नीचे से कॉमन आ जाएगा 0.09, क्या बचेगा 7 - 2 कितना होगा 5। कैलकुलेट करेंगे 50 में से 0.7 जाएगा, कितना बचेगा 49.3 जूल। तो आंसर इज़ 49.3 जूल।